जैसे ब्लड होता है ना, हाँ तो जब डोनेशन करता है ना कोई भी बंदा जो ब्लड देता है, हाँ तो उस ब्लड को नॉर्मली टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, वो जम जाएगा। और 18 कैरेट गोल्ड की है। ये गोल्ड प्लेटेड है वगैरह। ये कौन सा रोग है? किस किस जगह के लिए, रिलीफ के लिए? सेफ्टी गियर्स। Since first, whether the patient is fatty, it will accordingly it will adjust the depth. Okay. हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं भाई। देख तो हमारे पीछे आज लग चुका है भाई, हम आ चुके हैं प्रगति मैदान और यहाँ पे लगा हुआ है भाई हेल्थ केयर, इंडिया हेल्थ केयर एग्जीबिशन जो है एक्सप्लोर करते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कर चुके हैं, अंदर चल के जो है एक्सप्लोर करते हैं और सारी चीज़ें तुम्हें दिखाते हैं क्या बने रही है इस ब्लॉग में। और देख तो ये सारी कंपनियाँ जो है आई है, B2B जो है इनका बिजनेस है। यहाँ से QR कोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इंडिया हेल्थ केयर के अंदर जो आने के बाद ये कुछ तो पैंकिंग का है। ये वो है ब्लड फ्लो, यानी देख सकते हो वो है लड़कियों का यूज़ किया है, देख सकते हो मतलब का। ये है न्यू लाइफ मेडिकल सिस्टम। This place only. This is the correct place. Okay. बहुत आसान है। Even low मेल्स में तो कर सकते हैं, फीमेल से मुझे लग रहा है क्योंकि अगर male इनके- female doesn't matter. See, actually for that only you just see. Now actually like from the bottom it is like up to this level. Okay, and it will sense first. It will sense. Just see this piston. It will sense first. Whether the patient is fatty, it will accordingly it will adjust the depth. Okay. So if the body, if this body is very lean, बहुत सारा शेप मिश्रण हो गया है। और आपका वो ऑटोमेटिक है, मैनुअल है कैसा? बहुत सारा ऑटोमेटेड से किया है। सम स्पेसिफिकेशन फीचर्स ओनली डिफर। ओके। At least 20 founders a day. I think some of them have not even thought through their IP strategy, and they said that we want a product which is actually going to be globally accepted. You're not going to get there, you know. So I think it's really high time that AMET, you know, should really have a very focused way of working with startups because their needs are very different, right? Like as a banker, I can also tell you that, you know, pharma sector, we used to love funding anybody and everybody, right? I worked with the Yes Bank, and one of the favorite sector that we used to put money was pharma, because actually they don't need money because they are already generating 30% EBITDA. So it was a risk-free money, and I think if bankers feel that, you know, it's okay for them to take debt, because sometimes it's important to look at tax efficiency. So they would do debt only because they felt that there is a tax efficiency angle. So I feel that the focus should be, you know, making startup competitive. Now, if I can give you another example, you know, since there are many stakeholders from the government. Yeah, just one more example, sir. Bio design program, Stanford India Bio Design Program, and I want each one of you to know about it. Such programs are running for n number of years, but you know, the innovations have not reached the market to the stage it should have. What is gone wrong? Only one or two companies from Stanford Biodesign Program in 2012, I can think, which have gone global and now actually doing much better sale in UK than doing India. How can we have such replication of success stories when we meet next year? I think that's the point I want to really request you, that you should think about startups, how they should think export from day one, not when they only compete in India. So that's the larger point I wanted to make. Thank you, sir. Fair enough. फार्मा इंडस्ट्री की सारी कंपनी आई हुई है। कौन सा है चेयर? हैं? मोर ब्रूस। देखो ये मोर ब्रूस है। ये भी बहुत सारे मशीनें हैं भाई मेडिकल फील्ड के। ये देखो भाई, ये है व्हील चेयर, एडवांस व्हील चेयर आई थिंक। सेफ्टी गियर्स देख रहे हो, 1 2 3 4 सेफ्टी गियर्स लगा हुआ है, चश्मा वगैरह पूरा फुल 360 डिग्री बम्पर सोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री सोल्यूशन। भाई क्या है इसके बारे में बताओगे थोड़ा? ये सिमुलेटर है मेडिकल एजुकेशन के लिए। इसका मतलब क्या पर्पज़ है? मतलब ये टीचिंग के लिए है। अच्छा, टीचिंग के लिए। इसमें तो रियल भी कुछ मिलता है शायद। हाँ, रियल ही है ये सारा। हाँ रियल है, प्लास्टिक का यार। देखो नहीं सिलिकॉन टच करके देखो। ये देखो भाई, ये मेडिकल जो है सिखाने के लिए पर्पज से बनाया हुआ है, देखते हो सिंगल वगैरह। ये कौन सा मटेरियल का? सिलिकॉन। सिलिकॉन है। एडवांस वेटन, ये सिंगल ब्रेस्ट ट्रेनर विद पैथोलॉजीज वगैरह। ये कौन सा रोग है? पैथोलॉजीज वगैरह जैसे गांठ वगैरह हो जाती है। अच्छा, उसके लिए। ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल रियल है। ये इसका क्या कॉस्ट है? ये इंजेक्शन ट्रेनर। अच्छा, इंजेक्शन ट्रेनर है, इसमें सीखते हैं बंदे इंजेक्शन लगा के। स्किन में इंजेक्शन देना है, हाँ। डीप इंजेक्शन देना है, उसके लिए
ये कौन सा चेयर भैया? ये OT टेबल है। OT टेबल। ये लाइट वगैरह है इधर, जैसे ये वर्क कर रहा है वैसे सेम लाइट वर्क करेगा इधर, देखते हो काफ़ी अच्छा। इधर देखो ये टूल वगैरह है सारा, बहुत सारा मेडिकल फील्ड के रिलीफ पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रखा हुआ है इसका। इधर भी मटेरियल बहुत सारा है। ये कहाँ के लिए है, किस किस जगह के लिए है रिलीफ के लिए? ये तो घुटनों के लिए है ना सिर्फ जो दिख रहा, तो इसके अलावा भी? हाँ, तो इसके अलावा क्या क्या अपने पास कहाँ के लिए है रिलीफ पेन? अच्छा इधर भाई देखते हो, इधर ही बहुत सारा लगा हुआ भाई ये रिलीफ के लिए। देखते हो ये काफ़ी वजन है, काफ़ी वजन है वैसे। क्या मटेरियल है कुछ? जल बेस है। तो हीट वगैरह भी होगा? तो ये पावर बैंक वगैरह से या डायरेक्ट चार्जिंग से? नहीं, ये है ओवन में। अच्छा, ओवन में रख के कितने देर तक हीट रहेगा ये? ऑलमोस्ट अगर एक बार हम ओवन में रख के निकालते हैं कितने देर? 15 मिनट। देख तो भाई इसका प्राइस वगैरह क्या होगा? हाँ तो सर क्या है अपने पास? ये पियर्सिंग स्टड्स है, पियर्सिंग किट है। हाँ, और 18 कैरेट गोल्ड की है। अच्छा गोल्ड की है। हाँ। तो गोल्ड के सिवाय भी अपने पास और कुछ है? हाँ, ये है ना, इधर देखो। ये गोल्ड में ही सारा दिख रहा है। ये गोल्ड में नहीं है। हाँ, गोल्ड में नहीं है। ये गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, गोल्ड प्लेटेड है। यस। अपने पास और क्या क्या है? और नोज पिन होगा हमारे पास। नोज पिन हो। तो ये देखो भाई ऐसा डिज़ाइन तो मिल जाएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। ये क्या है, स्किन केयर हो रहा है? हाँ, ये स्किन क्लीनर, आफ्टर लोशन, आफ्टर केयर। तो अगर कोई परचेज करना चाहे तो आपका यहीं से कर सकते हैं, कहीं और ऑनलाइन वगैरह है? आप यहाँ ऑर्डर देख कर सकते हो। अच्छा, और एडवांस में कुछ अमाउंट पे कर सकते हो? पे कर सकते हो। देन आफ्टर आपको रिसीव होगा तो आप पेमेंट करेंगे। ओके, ये इनका कार्ड है। अगर इसमें कुछ भी आपको ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये भाई इधर देखो रोबोट है ये वाला, ठीक चल रहा है। सर ये फ्रीज है क्या? ये फ्रीज है क्या है? ये सर मेडिकल रेफ्रिजरेटर है, ब्लड बैंक के लिए। इसमें कोक और रख रहे हो आप? कोक रखे हो सैंपल के? अच्छा, दोनों रख सकते हो। ये सर एक्चुअली ब्लड बैंक में यूज हम करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके ठंडाई का फायदा उठा रहे हैं कि ठंडा कर करके पी भी पी रहे हैं। अच्छा, इसमें वैसे मेडिकल सामान इक्विपमेंट है, जैसे हाँ। ब्लड होता है ना। हाँ तो जब डोनेशन करता है ना कोई हाँ। भी बंदा जो ब्लड देता है, हाँ तो उस ब्लड को नॉर्मली टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, वो जम ओके। जाएगा, आपको ओके। भी पता होगा। हाँ, तो उसको ब्लड बैंक जिसको बोलते हैं उसके लिए एक बॉक्स बनाना होता है। तो इसमें ठंडा रहेगा, ठंडा से नहीं जमेगा? वो ठंडा से 22 डिग्री टेम्परेचर इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो मेंटेन करके रखा है 22 डिग्री। 22 डिग्री पे ब्लड का जो तो ये कभी तो बंद भी नहीं करना होगा वैसे? नहीं नहीं बंद कर दें ब्लड खराब हो जाएगा, पूरा सारा ब्लड खराब हो जाएगा। पूरा खराब हो जाएगा। आपको भी पता है, सबको पता है कि ब्लड कोई ऐसा चीज परचेजेबल चीज तो है नहीं। परचेबल ये चीज तो बॉडी से ही निकलेगा हाँ। तभी खून मिलेगा। कोई केमिकल मिला के ब्लड नहीं बना सकता, हाँ। दवाई बना सकता है ब्लड। लेकिन किसी जानवर का भी चढ़ सकता है, इंसान में नहीं चढ़ पॉसिबल नहीं है। ये कौन सा मशीन है? ये भी ब्लड सैंपल चेक करने का? नहीं, ये टिश्यू टेस्ट के लिए। टिश्यू टेस्ट के लिए? जब बॉडी से कोई जिसको कैंसर हो गया, कोई जैसे कोई रसौली हो गया या हाँ। कैंसर है हाँ। या ट्यूमर है, जैसे सुनते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। हाँ। अब वो ट्यूमर तो ऐसे तो ठीक होगा नहीं हाँ। जब तक उसका इलाज नहीं कराएंगे। तो हाँ। डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ से कुछ टिश्यू बोले तो कुछ मांस का टुकड़ा निकाल लेते हैं, फिर इसमें डाल कट करके उसको फिर प्रोसेस करते हैं इसमें। हाँ प्रोसेस करने के बाद ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। हाँ लैब का सबसे लंबा प्रोसेस हिस्टोपैथोलॉजी का ही लैब होता है। ओके। तो उसमें प्रोसेस करने के बाद फिर उसको एम्बेड करते हैं, मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद फिर उसको माइक्रोटॉप पे कट करते हैं। माइक्रोटॉप पे कट करने के बाद फिर उसकी स्लाइड बनती है, जो ओके। आप शीशे की स्लाइड देखते होंगे, हाँ। पतली पतली लंबी लंबी होती है। उसके ऊपर स्लाइड को लेके फिर उसको एक स्टेनर मशीन आती है, एक और इसी की तरह। स्टेन करने के बाद फिर पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप पे देख के उसकी रिपोर्टिंग करेगा कि मतलब सही होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, या क्या दवाई इसके लिए चाहिए। क्योंकि बिना रिपोर्ट के तो डॉक्टर तो आंख बंद करके ऐसे अंदाजे से दवाई देगा ना। जैसे आप जाते हो तो तबीयत खराब है तो बुखार का दवाई दे दिया, लेकिन वो बुखार 15 दिन तक ठीक ही नहीं हो रहा, क्या करोगे आप? फिर तो टेस्ट कराना पड़ेगा। अब टेस्ट कराओगे तभी पता चलेगा कि कौन सा बुखार है या इस बुखार का दवाई क्या है। तो उसके लिए टेस्ट, जब तक आप टिश्यू को टेस्ट नहीं कराओगे तब तक आपका ट्यूमर है वो और फैलते जा रहा है। दवाई खा रहे हैं, एक साल तक वो और बड़ा होते जा रहा है। ये वाली कौन सा मशीन है? ये वाली जो लगी है ये ETO है, ETO स्टेलाइजर, इथिलीन
गैस जो होती है ना उसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारा लो टेम्परेचर पे स्टरलाइज करते हैं। अच्छा। एक होता है हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइज करने की मशीन होती है, जैसे मान के चलो स्टीम स्टरलाइजर होता है जो हमारा 121 डिग्री पे होता है, 134 डिग्री पे होता है। बट जो हमारा ETO होता है वो हमारा 37 डिग्री से और 63 डिग्री तक हमारे स्टरलाइज करने का प्रोसेस होता है। जो हीट सेंसिटिव आइटम होते हैं हमारे, जैसे कैच वाले होते हैं हमारे, और ट्यूब्स होती हैं, कैमराज होते हैं, उसको स्टरलाइज करने के लिए जो मशीन होती है वो ETO स्टरलाइज प्रोसेस कहलाता है। ओके। सर इसमें हमारा क्या है, इथिलीन ऑक्साइड एक होती है गैस। अच्छा। उस गैस के द्वारा एक इसमें लॉन्ग टर्म टाइम होती है, मतलब उसकी कंडीशन होती है जो कि कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे इसको स्टरलाइज करता है गैस के द्वारा। एक बोतल में? हाँ, एक बोतल क्या है, एक प्रोसेस के लिए होता है। एक प्रोसेस में क्योंकि सर गैस होती है, एक बार ब्लास्ट हो जाए। इस मशीन का प्रोपर यही है कि भाई इसके यूटिलाइज करने का काम आता है। स्टरलाइज करने का काम होता है। भाई देख तो ऐसे बहुत सारे मशीनें इधर है लगे हुए। भाई जस्ट जो है हम जो है एग्जीबिशन से जो है बाहर आ चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पर नए नए अपडेट आपको मिलता रहेगा।